Hey guys, welcome back. Another day and another analysis of results. Okay, so अभी मैंने जस्ट खोला एड्स मैनेजर्स। जो हमने लास्ट बार करा था वो था कि लास्ट बार हमने प्रोडक्ट पेज का चेंज करा था, तो दैट रियली इम्पैक्ट्स। क्योंकि देखो, अगर हम लास्ट जो फर्स्ट प्रोडक्ट पेज को देखेंगे, दैट कन्वर्ट एट 4.79 रोएस, जो कि बहुत बेकार था, इसलिए उसको बंद करा था। ठीक है ना। और मैंने बताया था कि लेस देन 8 रोएस या 7 रोएस इज़ नॉट वर्थ, वो तो अनप्रॉफिटेबल होने ही वाला है। ठीक है। तो लास्ट यस्टरडे में क्या था कि हमने बहुत कुछ टेस्ट करा था, उसकी वजह से रोएस ड्रॉप था, क्योंकि बहुत सारा स्पेंड इधर उधर गया जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। सो अल्टीमेटली वुमेन एंड मैन को हमने स्प्लिट टेस्ट करा था, प्लस जो हमारा मेन काम कर रहा था वो था मैन ओल्ड क्रिएटिव एंड मैन ओल्ड क्रिएटिव 4x, प्लस वुमेन ओपन न्यू क्रिएटिव न्यू कैप्शन वाला। ठीक है ना, इन दोनों को हमने बंद करा था। तो आज क्या हुआ कि आज ये जो वुमेन ओपन न्यू क्रिएटिव न्यू कैप्शन वाला था एड सेट, दैट इज़ परफॉर्मिंग शेट। सो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा था 4 रोएस के साथ में, एंड दैट इज़ क्वाइट अनप्रॉफिटेबल, है ना। तो उसी लिए उस चीज़ को हमने बंद कर दिया, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 एडसेट्स राइट नाउ, दैट इज़ ओपन मैन ओल्ड क्रिएटिव एंड ओपन मैन ओल्ड क्रिएटिव 4x, जो कि $20 पे रन हो रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर। एंड बोथ CPCs आर क्वाइट नाइस, इट्स अराउंड 1 सेंट, दैट इज 80 पैसा। ठीक है। प्लस परचेज इज लाइक रोएस देखा जाए तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 11, दैट इज क्वाइट गुड टू, है ना। वी जस्ट वांट दैट ओनली। और अगर मैं ओवरऑल रोएस दिखाऊं आपको, सो बाय मैनुअली कैलकुलेटिंग इट, सो इट्स अराउंड 1130 रुपये लगे, 1130 rupees spent, and we got like 21 sales, right? So it's like 53 rupees per purchase, and we are selling for 599, so it's almost like 10 11 rows. So now what we are going to do is we have to bump up the ad spend, because we only have 2 ad sets are running that will spend only $25, but we want to spend more. So now we will only focus on the winners, we will not focus on losers and testing more stuff. We will test more stuff in the later phase, but for now we will just focus on like what's working and put more money into it. Okay, so let's do it 5x, and let's try one $25 ad set budget, and let's see how it performs, right? So 5x, and we will just do $25. Let's launch it now only, we will not wait for tomorrow, and everything will remain the same. As you can see, we will 18 to 40 and man languages all, and as you can see, $25 we have entered. We will run now only, and 18 to 24 man only and all languages. Perfect. This will be our new ad set, and let's see how it performs. I'll update you about that tomorrow, but for now let's launch it. Okay, so it is launched now, and we will only focus on the winners to get like at least 13-14 rows on this, so that it will be profitable most probably. And if I show you current stats, it's decent. Everybody is not buying, I don't know why, but conversion rate is not that great, but we are getting very cheap traffic, so maybe that's the reason. But we have like done like 50 orders, and if I do total of ROAS, like what's the ROAS of everything till now including testing, so it's like we spent 5,158 rupees, so 5158, and we got like a 35, it's like 42,000 of sale, but few are cancelled, few are unreachable and all those things. So I will consider 42 only, because we have to like deduct everything after that. It's like 8.2 ROAS, and it just bumped up, right? Like first testing phase was like 4.79, and if we stuck there, and it won't be profitable, that's for sure, है ना। बट अभी हमने नया कैंपेन लॉन्च करके, चेंजेस करके, एंड वी जस्ट डबल आर रोएस ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, सो इट्स अबाउट 8.2। तो ऑलमोस्ट हमने 4 रोएस और ऐड कर लिया है हमारे प्रीवियस रोएस में, एंड दैट्स क्वाइट गुड। और अभी मेरे को जो एक्सपेक्टेशन है इस प्रोडक्ट से और बेसिकली इस कैंपेन से, इस बेसिकली कि मेरे को इसमें एटलीस्ट 14 या 15 रोएस लाना है और उसको अचीव करना है, एंड फॉर दैट लेट्स डू
whatever it takes. यहाँ पर 11 ROAS अब अपडेट हो गया है, so that's quite good. रिव्यू से बाहर आएगा, और अगर if it performs nice then it will help us to bump up the ROAS to at least 14-15 overall, and that's what I want. So that's it for this video. I hope this video helps you to understand how ये कैसे होता है, basically everything how goes, right? So only way you can make money in India is higher ROAS and lower RTO, nothing else. Okay, so अगर हमारा RTO थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ, for example I am expecting 65 to 70% delivery of this product, but if it dropped to like 40% RTO and 60% delivery or 55% delivery, then also there is a possibility with higher ROAS कि तुम पैसा बनाओगे या तुम ब्रेक इवन भी कर जाओगे, या थोड़ा बहुत like 5-6-7% प्रॉफिटेबल होगा. अगर if you have like higher ROAS और higher डिलीवरी रेट, फॉर एग्जांपल हमारा 70% डिलीवरी हो गया और हमारा 15 ROAS हुआ, तो इट इज़ गारंटी टू मेक लाइक 20% मार्जिन देयर, बट विदाउट दैट वोंट बी पॉसिबल, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, सो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं अपने रिजल्ट्स का, जो हमने लास्ट वीडियो में जो लॉन्च करे थे एंड ऑल. सो जो मैंने चेंजेस करे हैं बीच में वो ये हैं कि जो हमने 5x वाला लॉन्च करा था कल, उसको मैंने बंद कर दिया क्योंकि येस्टरडे इट वाजंट परफॉर्मिंग दैट वेल. सो देखा जाए तो ये 7 ROAS पे 6.5 पे सॉरी ये वर्क कर रहा था, तो मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया. एंड द ओनली एड सेट्स आर वर्किंग इज दिस टू, जो कि है ओपन मैन ओल्ड क्रिएटिव्स एंड ओपन मैन ओल्ड क्रिएटिव फॉरेक्स, जो कि सही काम कर रहे हैं. एंड टुडे ऑल्सो लाइक टुडे इट इज़ परफॉर्मिंग लाइक द ओपन मैन ओल्ड क्रिएटिव इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल 6.4, बट हमें ऑलवेज लाइक 3-4 दिन के इंटरवल में एनालिसिस करनी चाहिए. सो लाइक इट्स ओवर 11 ROAS. इफ़ इट इज़ डिप्ड, अगर ये डिप हुआ 9.5 के बिलो तो मैं इसको कट कर दूंगा. एंड 4x वाला जो 10 ROAS पे काम कर रहा है, जो कि काफ़ी सही है. सो अगर मैं आज का आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आज हमारा 11.5 ROAS पे काम कर रहा है एंड 4x वाला 13 ROAS पे, दैट इज़ क्वाइट वेल. और अगर मैं पर परचेज की बात करूं तो अगर हमारे 777 रुपीज़ स्पेंड हुए हैं अभी तक, हमें 16 सेल आई हैं. तो एक सेल हमें 48 रुपीज़ की आई है, 48.5 की हमें एक सेल आई है, दैट इज़ क्वाइट वेल. एंड अभी जो चल रहा है वो एड्स काफ़ी धीरे हो गए हैं, स्पेंड करना बंद कर दिया है ऑलमोस्ट, लाइक बहुत स्लो हो गया है ट्रैफिक लास्ट फ्यू आवर्स से, एज यू कैन सी. आई डोंट नो व्हाई, कुछ फेसबुक का ग्लिच है कि क्या है, बट स्पेंड बहुत धीरे हो गया है. सो वट एवर इट इज़. एंड ऑल्सो मैंने एक और नया कैंपेन लॉन्च करा है न्यू प्रोडक्ट का, सो लेट्स सी कि वो काम करता है कि नहीं करता है. NP is new product, and that's it for this analysis video. So मैं एक और एनालिसिस कर लेता हूँ आपके सामने कि हम देख लेते हैं जो हमारा एड्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मेन वाले. तो अगर मैं इसको yesterday पे अगर एनालिसिस करूँ, इट वॉज लाइक 0.18 डॉलर्स का उसमें CPM था, और आज है 0.919 का, दैट्स फाइन. और कॉस्ट पर परचेज 0.84 का था, आज है 1.14 का, दैट इज़ नॉट क्वाइट गुड. तो हमारे से 2 एडसेट चल रही है, एक्टिव में पहुंच गया, ये लर्निंग में ही है, मतलब हाइयर बजट ऑलवेज गेट आउट ऑफ लर्निंग क्विक, तो ये भी बात है. और हमने 10 एडसेट टेस्ट करे हैं अभी तक. लेट्स डू द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टोटल कि हमें क्या मिला है टोटल अभी तक. सो हमें 2 एडसेट में हमने $93 स्पेंड करे हैं, अराउंड 7,655 रुपीज़ स्पेंड करे हैं, और हमें 101 ऑर्डर आए हैं. सो अगर मैं आपको दिखाऊं टेस्टिंग, और सो हमें 75 रुपीज़ का पीक ऑर्डर आया है, जो कि अच्छा नहीं है, बट हमें टेस्टिंग में बहुत पैसा लगा है, दैट इज़ वाई जो कॉस्ट पर परचेज है वो थोड़ा सा राइज है. बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो इट्स लाइक 50-55 रुपीज़, जो कि काफ़ी सही है. इट्स ओवर 11 ROAS. सो 11-12 ROAS पे ही अगर स्टेबल रहे कि अगर $100-200 स्पेंड होते हैं इस प्रोडक्ट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल मेक लाइक 20% नेट. सो दैट इज़ क्वाइट गुड, एंड इट्स नॉट दैट बिग टू स्पेंड $100 ऑन दिस थिंग, बिकॉज काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस है, और अभी टाइमिंग भी सही है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है. सो टाइमिंग सही है, ब्रॉड टारगेटिंग, लाइक ब्रॉड ऑडियंस है, एंड जो एज ग्रुप है वो भी काफ़ी सही है, लाइक मॉडर्न है तो उनको ख़रीदना आता है, लेना आता है, एंड ऑल दोस थिंग. सो मेरे हिसाब से $100-200 स्पेंड करना पर डे का कोई ऐसी कोई बड़ा खेल नहीं है इसमें. बट विथ लाइक कॉन्स्टेंट 11-12 ROAS
इट्स लाइक मैंडेटरी टू गेट दैट। इससे आगे मैं ये चैलेंज कंटिन्यू नहीं करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अभी तक प्रॉपरली सोर्स नहीं हुआ है मेरे से, और वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग, एंड ऑल्सो वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द जजमेंट कि ये प्रोडक्ट डिलीवरी रेट कैसा आता है और RTO कैसा आता है एंड ऑल दोस थिंग। सो वो चीज़ों के बाद ही किसी भी प्रोडक्ट को स्केल करना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्टली स्पेंड लाइक $100 अराउंड, जैसे हम $93 स्पेंड करे हैं, ऑलमोस्ट हमें $100 के लगभग टेस्ट करना चाहिए एंड गेट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स। ठीक है, हमारा गोल होना चाहिए 100 ऑर्डर्स आ जाए। जैसे हमारे 101 ऑर्डर आ गए, तो अब इसमें क्या क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि अगर 25 कैंसिल हुए मतलब 25% कैंसिलेशन, अगर 30 हमने 100 शिप करे और 30 वापस आ गए तो 30% RTO एंड 70% डिलीवरी। तो उस जजमेंट से जब आप स्केल करते हो चीज़ों को तो काफ़ी कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और उसमें आप उस चीज़ों में पैसा नहीं लगाते हो जिसमें आपको श्योर नहीं है कि वापस आना कि नहीं आना। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी अगर बहुत ख़राब हो गई या आपका कैंसिलेशन बहुत हाई हो गया तो उसमें पैसा बन नहीं सकता। तो अगर पैसा बनेगा ही नहीं तो ये जो सेल्स के नंबर हैं ये तो सिर्फ फॉल्स है मेरे हिसाब से। तो इंडिया में जो सेल्स नंबर है इट्स ऑल COD, so you can't trust them, right? But you can only trust the delivery rate, you can only trust the cost per purchase, and also you can only trust कि मेरे को रेमिटेंस जो होता है एग्जैक्ट में रेमिटेंस आ कितना रहा है, क्योंकि बहुत सारी फीसेज होती हैं, फ्लाइट चार्जेस होते हैं, हमें शिपिंग का चार्ज लग रहा है, हमें सब मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर पता ही नहीं होगा कि क्या कमा रहे हो क्या खा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं होगा उसमें बिजनेस करने से। इट्स नॉट कैलकुलेटेड थिंग। सो आई थिंक कि हमें मेजरली सारी चीज़ें देख के ही चलना चाहिए। एंड मैंने इस चैलेंज से आपको ओवरव्यू दे दिया कि कैसे लॉन्च करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इससे इन्फ्लुएंस होता है कॉस्ट पर परचेस, एंड कैसे स्लोली आप जैसे रिफाइन करते हो वैसे आपका कॉस्ट पर परचेस नीचे आता है, आपका बेसिकली प्रॉफिट का चांसेस हायर हो जाता है आफ्टर लाइक अगर वर्स के सिनेरियो भी आपके COD एंड ऑल दोस थिंग RTOs एंड ऑल। तो दैट इज़ द थिंग। मैं अपना नया प्रोडक्ट टेस्ट करता हूँ $100 के साथ में, लेट्स सी कैसे क्या रहता है। बट फॉर नाउ इट्स लाइक जस्ट द चैलेंज एंड्स हियर, एंड आई होप यू लाइक दिस चैलेंज। अगर आपको और चैलेंजेस देखने हो इन फ्यूचर सो इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू, अगर किसी को इंडियन ई-कॉम का अगर देखना है कैसे होता है कैसे, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से प्रॉपर दिखाया है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट वांट यू टू थिंक कि सिर्फ नंबर्स दिखा दिए और कैसे चीज़ें हुई वो तो बताया ही नहीं, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती हैं। मैंने आपको पूरा बैक इन द स्टोरी का बताया है, एंड दैट्स इट। या थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।